So, you will be wondering what is a preamble. So, preamble, according to some famous personality, according to K.M. Munshi, preamble is a horoscope of constitution. Second, soul of the constitution, that is by the Thakur Das Bhargava and N.A. Palkiwala, identity card of the constitution. The idea of preamble from USA originated from objective resolution of Pandit Jawaharlal Nehru. So we the people of India have solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. So in here, we the people has been taken from the source of which means that is have the source of the power, that is the power, the people. The whole India constitution, the power lies in the hands of the people. So what is India? So India is sovereign, socialist, secular, democratic and a republic country. Okay. Now what is justice, social, economic and political? So what are the ideals of our constitution, ideals of our nation? So ideals of a nation are justice, liberty, equality and fraternity. So what is the enacting clause? So enacting clause is a clause which enacts that our Constituent Assembly in this 26th day of November 1945 and 49 do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution. Now this is complete. Now we will be covering what are the meanings of various words in a preamble. So we the people means that the source of the constitution is the people of India, has been and which has been taken from USA, that is the United States of India. Now America, sorry. So sovereign. Now sovereign means supreme or independent. Independent. Okay, that is the sovereign मतलब कि that is having the supreme power or an independent thing. ठीक है. Now sovereignty has two dimensions, external and internal. India is both internally and externally sovereign, that is independent. Like उनको भी आके बाहर वाला international thing cannot like have any take कोई भी चीज़ पे वो क्वेश्चन नहीं कर सकता. It is having the independent and the supreme power which lies in the hands of the India. Now external sovereignty, what does it mean? And now external sovereignty means the sovereignty, sorry for that, we were hearing. External sovereignty means the sovereignty in international law, which means the independence of the state over other states. Now what is internal sovereignty? So internal sovereignty is a right of a nation to be free of internal sovereign, of disruption to its rights and freedom to exercise internal governance in society and territories. ठीक है. India is sovereign from 26 January 1950. You can have a note of it. Now the third thing which we will going to learn about meaning is that socialist. So added to the preamble during the emergency by the 32nd Amendment Act of 1976, which means that we will have social and economic equality. Social equality means everyone is equal, irrespective of caste, creed, race, religion, sex or language. Economic equality means that government will ensure to make the contribution of wealth more equal and provide a decent standard of living for all. Now what are the case laws which are very important in regards of preamble? सबसे first one is the Elsevier versus Union of India 1979. In this, the facts arise. The case of this is the Supreme Court found the word socialist as a portal opened for lien. The judgment is favored of nationalism and state ownership of in this industry. But the principle of socialism and social justice cannot ignore the interests of different sections of society, majorly the private owners. ओके. सो यहाँ पे यह बोला गया था एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1979 का केस है. इसमें ये बोला गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो उनका वर्ड जो सोशलिस्ट है उस वर्ड के अकॉर्डिंग ये उन्हें निकाला था इनकी जो जजमेंट है वो हमेशा नेशनलिज्म के फेवर में आना चाहिए और स्टेट ओनरशिप ऑफ इन द इंडस्ट्री. बट जो प्रिंसिपल है सोशलिज्म का, प्रिंसिपल सोशलिज्म का वो रहता है एंड सोशल जस्टिस का वो इग्नोर नहीं कर सकता कोई भी डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मेजरली जो प्राइवेट ओनर्स हैं. ना मिनरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस है. तो इसमें बोला था द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैज कंसिडर द मेकिंग ऑफ द वर्ड सोशलिज्म टू क्रिस्टलाइज अ सोशलिस्ट state ensuring with people socio-economic justice by the people of the fundamental rights and
the directive principle of state policy. Now DS Navakar versus Union of India 1983 का केस है. Supreme Court said that the socialism aims at providing the working people a decent standard of living. ये बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं कि सोशलिज़म है, जो ऑनरेबल अपने सुप्रीम कोर्ट है वो बोलते हैं कि सोशलिज़म है, उसका एम क्या रहता है कि जो भी वर्किंग क्लास पीपल है उनको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड किया जाए. किसकी तरफ से? बाय दी स्टेट गवर्नमेंट और दी गवर्नमेंट. सेकुलर का भी अमेंड हुआ था बाय दी 42nd अमेंडमेंट एक्ट. जो वर्ड सेकुलर है वो सिंपली इम्प्लाई करता है इक्वल ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड रिलीजियस टॉलरेंस इन इंडिया, देयरफॉर डजंट हैव एनी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन. द गवर्नमेंट मस्ट हैव नॉट फेवर डिस्क्रिमिनेटिव अगेंस्ट एनी रिलीजन. एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन दे चूज. दैट इज़ ना. इसमें केस आता है SR बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का. किसमें? सेकुलरिज्म के लिए. इस केस में ये एलाइज हुआ था कि ये हेल्ड हुआ था कि सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. नाउ सेंट ज़ेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में क्या केस में होता है? 1974 का केस ही है. इस केस में जो कोर्ट है सेड दैट द सेकुलरिज्म इज नीदर एंटी गॉड नॉर प्रो गॉड. सेकुलरिज्म मीन्स एलिमिनेशन ऑफ गॉड फ्रॉम द मैटर ऑफ द स्टेट एंड द स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विद द रिलीजन ऑफ द पीपल. तो इसमें ये कहा गया था कोर्ट के बाय द कोर्ट डैट जो सेकुलरिज्म है ना कि वो एंटी गॉड है ना कि प्रो गॉड है. सेकुलरिज्म मतलब कि गॉड को एलिमिनेशन करना, मीन्स एलिमिनेशन ऑफ गॉड फ्रॉम मैटर. जो स्टेट के मैटर्स में उसमें गॉड को ना लिया जाए. ठीक है, एक सेकुलर अथॉरिटी की तरीके से लिया जाए कोई भी मैटर को. एंड स्टेट को कोई भी रिलीजन का किसी भी पीपल से कुछ भी नहीं होना चाहिए. द स्टेट शुड हैव एन सेकुलर पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स. ठीक है. नाउ फोर्थ वन इज़ डेमोक्रेटिक. तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी. तो द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट द गवर्नमेंट through free, fair and periodic election at all levels, union, state and local, by a system of universal adult franchise properly known as one man one vote. तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि एवरीवन इज़ इक्वल इन आइज ऑफ इंडिया. ठीक है, इन आइज ऑफ एवरीवन. ठीक है. तो पीपल ऑफ इंडिया है उनके मतलब जो लोग हैं वहाँ के लोग जो इंडिया के, वो अपनी गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं. लाइक कैसे करेंगे? बाय द फ्री, फेयर एंड पीरियोडिक इलेक्शन कंडक्ट करवा के. बट हर लेवल पे, यूनियन हो, स्टेट हो या लोकल हो, बाय द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एंड प्रॉपरली उसे बोलते हैं वन मैन वन वोट. नाउ फिफ्थ वन इज़ रिपब्लिक. तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्यों बोला गया है? ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंटिटी है जो क्या होती है? स्टेट की हेड होती है, जो स्टेट हेड इलेक्ट करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर के लिए. नाउ जस्टिस क्या होता है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल होता है. अब जस्टिस थ्रू अमंग सिटीजन नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी. नाउ सोशल जस्टिस टू क्रिएट अ सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और एनी अदर ग्राउंड्स. It tries to eliminate all the exploitation which harm equality in the society. नाउ इकोनॉमिक जस्टिस. सोशल जस्टिस क्या होता है? कोई भी सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कोई भी ग्राउंड पे, चाहे वो सेक्स, रिलीजन, रेस, कास्ट हो, किसी के भी अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन ना हो. एंड ये ट्राई करता है एलिमिनेट करके जितने एक्सप्लॉइटेशन क्वालिटी ऑफ है उसमें हटाने के लिए. ना इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम. ठीक है, वेल्थ या इकोनॉमिक स्टेटस के लिए. ठीक है. एंड इट मीन्स वेल्थ कैन नॉट बी मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूट ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क, नॉट विथ एनी अदर रीज़न. ठीक है, यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द एनी अदर थिंग, बट वर्क के अकॉर्डिंग उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उनकी इनकम, नॉट विथ एनी अदर रीज़न. तो एवरी पर्सन मस्ट बी पेड इक्वल फॉर एन इक्वल पोजिशन एंड ऑल पीपल मस्ट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न फॉर देयर लिविंग. तो मतलब हर एक पर्सन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए जिससे कि वो इनकम अर्न कर सके according to them. Now political justice. So it means all the people have an equal free and fair right without any discrimination to participate in political opportunity. तो मतलब हर एक पर्सन के पास एक इक्वल फ्री एंड फेयर राइट होना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कि वो कोई भी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट कर लें. लिबर्टी होना चाहिए ऑफ द थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. इट मीन्स सबके पास एक फ्रीडम फॉर द पीपल होना चाहिए टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ, हैविंग पॉलिटिकल व्यूज़ एंड बिहेवियर इन सोसाइटी. लिबर्टी मतलब इज़ अ स्टेट जहाँ पे कोई भी एब्सेंस होना चाहिए ऑफ एनी लाइक डिस्ट्रक्शंस. ठीक है. इक्वालिटी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए. लिबर्टी मतलब फ्री फ्रॉम होना चाहिए. इक्वालिटी मतलब स्टेट एंड अपॉर्चुनिटी. तो इट मीन नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज़ एनी स्पेशल प्रिविलेज एंड ऑल द पीपल हैव गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीथिंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. नाउ फ्रेटर्निटी.
It means a fulfillment of brotherhood and an emotional attachment with the country and all the people. Fraternity में एक तरीके से brotherhood होता है, to have a emotional attachment with the people. Fraternity helps to promote dignity and unity in the nation and integrity. That is कब से आई है? 42nd Amendment से. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, इस preamble a part of our constitution? तो ये बेरोबरी केस में 1960 में डिसाइड होता है बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कि इन द इट वॉज इन ए 9 जज बेंच ये डिसीजन डिसाइड हुआ था एंड द जजमेंट वॉज डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल जस्टिस दैट इज गजेंद्र गाडकर. इनने ये करा था, इन्हें हेल्प किया था प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दो दिस केस द कोर्ट स्टेटेड दैट प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. केशवनंद भारती में फिर आया था. इट वॉज अ बेंच ऑफ 13 जजेस जहाँ पे असेंबल होते टू हियर अ रिट पिटिशन बाय ऑनरेबल जस्टिस एस एम सिकरी ने इन्हें डिसाइड किया था, इन्हें हेल्प किया था कि प्रियम्बल जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सीन इन द सेम सेंस एज प्रियम्बल टू द स्टैच्यू. उसको कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसे किसी स्टैच्यू या फिर किसी एक्ट के थ्रू नहीं देखना चाहिए ऐसा इन सेम सेंस में. Now 29 August 1947 by the drafting committee, उनके drafting committee and the chairman थे बी आर अम्बेडकर थे. इनने ऑलमोस्ट 2 years 11 months and 18 days इन लोगों ने लिया था फॉर ड्राफ्टिंग और कॉन्स्टिट्यूशन. एंड 26 नवंबर 1949 अपना कॉन्स्टिट्यूशन मेड अप हुआ था. 26 जनवरी 1915 से कमस हुआ था. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे. टिल देन सी यू ऑन द अदर साइड.